Good morning, students. Welcome to this new lecture of Transportation Engineering 2. As you all know that we are dealing with the third unit of TRE 2, and in last lecture we saw different types of turnout, and before that we saw what is points, what is crossings, okay, what is tongue rail, what is stock rail. We have seen all the different components of points and crossing, which is very important, and it will definitely come in exam. The most important is the turnout, and usually in exam they basically ask about the drawing of turnout. Okay, drawing of turnout, the different component of turnout, they will ask about the component of turnout with drawing. Okay, so please prepare that topic thoroughly, and see the video again and again. If you don't understand anything, or any particular topic, if you don't understand any particular points or anything, you can ask me. Okay, so uh, we will continue our third unit topics, and the next topic after the turnout and points and crossing is station and yards. You all are familiar with what is stations, है ना? What is station? You all know what is station and what is different types of stations. Okay, and yard will be the, I think it will be the new topic for you, yards. But you all know about the stations. So uh, let's see what is basically station is. Okay, this topic station and yard is in your syllabus, so we have to cover this. So first we will see what is station, and after that we will see yards. Okay, so let's see what is station. So see, in front of your screen there is a definition of station. See here, a railway station or railroad station, and often shortened to just station, is a railway facility where trains regularly stop to load or unload passenger or freight. Okay, so from this definition you can easily understand what is station. Okay, station is a facility, is a railway facility, which is station is basically a facility which is provided by railway, where train regularly stop to load और unload passenger और freight. तो इसका सिंपल मीनिंग मैं आपको बताता हूँ. रेलवे की वो फैसिलिटी है स्टेशन जहाँ पे ट्रेन्स रेगुलरली रुकती है. क्यों रुकती है, स्टॉप क्यों होती है? क्योंकि उसे लोड करना होता है या फिर अनलोड करना होता है पैसेंजर्स को या फिर फ्रेट को. फ्रेट मीन्स यहाँ पे गुड्स हो सकता है. ठीक है, गुड्स का हम यहाँ पे सिंपल गुड्स बोल सकते हैं, मटेरियल गुड्स. ठीक है, यानी कि पैसेंजर को वहां पे उतरना है, या पैसेंजर वहां पे ट्रेन में चढ़ सकते हैं. ठीक है, पैसेंजर वहां पे अ, उतरना है या चढ़ना है, पैसेंजर्स को लोड होना है या अनलोड होना है. बेसिकली ये फैसिलिटी एक स्टेशन प्रोवाइड करता है. ठीक है, ठीक है, आई होप आपको स्टेशन के बारे में ये डेफिनेशन समझ गई. ठीक है ना? उसके बाद देखते हैं स्टेशन के बाद. ये एक स्टेशन का एक डायग्राम है. अब इसमें आप देख सकते हो, there are various facilities which is usually available in a good station. Okay, good station means GOOD, good, not good station. So a decent station or a station with good facilities, you can see in front of your screen there is a station which have almost all the facilities which should be available in a good station. Okay, in a decent station, in a well maintained, or especially a junction. Okay, for example, Nagpur station is a junction where almost all facilities are available. So as you can see in your in front of your screen, see here, there is a main station building. This is called a footbridge, which is used to transport passenger from one track to another track. Okay, one platform to another platform. This footbridge is basically used to transport uh, passengers or persons from one platform to another platform. Okay, and there are so many things. This is a signal tower. This is a signal tower. Okay, and this is semaphore. We will see this is one kind of a signal which is usually provided at railway station. We will see in
next topic in detail. In different in the topic of signals, we will see this kind of signals, the signal tower, signal gantry, everything we will see in signaling topic. So basically this is a station with almost all the facilities. As you can see in front of your screen, there is a parking system, okay, footbridge, and you can see here this is a freight station. This freight station is basically used for material loading and unloading. And there is a diesel shop for diesel locomotive. This is a scissor crossing which has a scissor shape, that's why it is called as scissor crossing. There is bumper. Okay, we will see everything, every term here we will see in detail. Okay, so this is a layout of a station. Okay, a station with almost all the facilities. Okay, so let's see the purpose of railway station. Why we provide a railway station. Okay, the main purposes of railway station. So the first one, as we all know, it is basically used for exchange of passenger and goods. Okay, as you all know, it is basically used to exchange of passenger and goods. For example, you are traveling to some other city and you want to go by train, then where will you go? You will first go to the station and then you will take your train. Okay, so this is basically for the exchange of passenger and goods. The material goods also exchange in station only. Okay, so first is to exchange passenger and goods. Okay, and the next one is to control the train movements. Okay, and in station only the movement of trains are controlled. Okay, the movements of trains are controlled. Okay, to enable the trains on a single line track to cross from opposite direction. In station there is also a chance of crossing the two trains. Okay, overtaking of trains. These operations are usually taken place in railway station. Okay, so where if the one train wants to cross another train to overtake another train. Okay, so these all operations are took place in railway station. To enable the following express train to overtake any local train. Okay, or any passenger train. For taking diesel or coal and water for locomotives. For example, uh, filling of diesel in locomotive or coal engines usually don't use nowadays, but before uh, before the time usually coal engines were also used. So changing of coals, okay, and filling water, these all operations usually take place in railway stations. For detaching engine and running staff, as you all know that the staff of train also uh, exchange in railway station only. Engines also exchange. Okay, for detaching or attaching compartment and wagons. uh, this sentence is more suitable for wagon trains. Okay, for wagon trains, for goods train, where additional compartment are added or removed from particular train. Okay, so this basically more suitable for wagon trains. Okay, for sorting of bogies to form new trains, housing of locomotive in loco sheds. For sorting of bogies means in this operation different types of material bogies are attached back, you can say. For example, in marshalling yard, we will see in marshalling yard this operation, new trains, forming of new trains, sorting of bogies uh, with respect to their materials. Okay, we will see this sentence, the meaning of correct meaning of this sentence in marshalling yard. We will see this. ओके, सो देखिए यहाँ पे हमने पहला देखे था फॉर एक्सचेंज ऑफ पैसेंजर एंड गुड्स. आपको पता ही है, जब हम एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं तो हम स्टेशन के थ्रू जाएंगे. फॉर कंट्रोल ऑफ ट्रेन मूवमेंट, दो ट्रेन्स को या आने वाली ट्रेन्स को प्रॉपरली कंट्रोल करना ये स्टेशन का काम है. ठीक है. टू एनेबल अ ट्रेन ऑन अ सिंगल लाइन ट्रैक टू क्रॉस फ्रॉम अपोजिट डायरेक्शन, दो ट्रेन आ रही है तो प्रॉपरली एक दूसरे को क्रॉस हो जाए, ये भी स्टेशन पे होती है क्रॉसिंग.
एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को ओवरटेक करे, ये भी स्टेशन पे होता है। फॉर टेकिंग डीजल और कोल एंड वाटर फॉर लोकोमोटिव, ये भी स्टेशन पे होता है, डीजल फिलिंग होता है, वाटर फिलिंग होता है। फॉर डिटैचिंग इंजन एंड रनिंग स्टाफ, जैसे आपको पता है जैसे कि ट्रेन में टीसी भी होते हैं, तो वो एक पर्टिकुलर स्टेशन से एक और पर्टिकुलर स्टेशन तक के ही होते हैं, फिर उसके बाद नए नए स्टाफ आते जाते हैं। फॉर डिटैचिंग एंड अटैचिंग ऑफ कंपार्टमेंट एंड वैगन्स, ये स्पेशली जो वैगन ट्रेन है, जो मालगाड़ी है, उसमें होता है नए कंपार्टमेंट ऐड करना या कोई कंपार्टमेंट को रिमूव करना। ये भी जो काम है ये स्टेशन पे होता है, स्पेशली ये काम यार्ड्स में होता है, स्टेशन यार्ड में। उसके बाद फॉर सॉर्टिंग ऑफ बोगीज टू फॉर्म न्यू ट्रेन, ये मार्शलिंग यार्ड में होता है, जब बोगीज को सॉर्ट करना है। जैसे कि एक ट्रेन में फॉर एग्जांपल इन अ पर्टिकुलर गुड्स ट्रेन, देयर इज अ मटेरियल ऑफ स्टील एंड सीमेंट। सो इसको इस तरीके से सॉर्ट किया जाएगा कि सीमेंट वाले जो वैगन्स है वो एक के पीछे एक रहेंगे कंटिन्यू, और स्टील वाले अलग रहेंगे, उसी तरह कोई और मटेरियल वाले अलग रहेंगे, तो इसको बोगीज को सॉर्ट करना, ठीक है। ये हम देखेंगे मार्शलिंग यार्ड में डिटेल में। उसके बाद एक और है, इन इमरजेंसीज इन ईज ऑफ डिसलोकेशन ऑफ ट्रैक ड्यू टू ट्रेन एक्सीडेंट्स, ठीक है। अब ट्रेन का कोई एक्सीडेंट हो गया तो उसे पास के स्टेशन में लेके जाया जाता है, ठीक है। उसके बाद स्टेशन का जो यूज है वो इमरजेंसीज में ज्यादा आता है, ठीक है ना, ये इस तरीके से स्टेशन पास में होना चाहिए एक दूसरे के, ठीक है। उसके बाद फॉर रिपेयरिंग इंजन एंड चेंजिंग देयर डायरेक्शन, अब ये तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इंजन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसका जो रिपेयरिंग है वो कहीं ट्रैक के बीच में तो होगा नहीं, ठीक है ना, वो तो स्टेशन पे ही होगा, ठीक है। उसके अलावा ट्रेन जो अपना डायरेक्शन चेंज करेगी वो भी स्टेशन पे आके ही चेंज करेगी, जंक्शन में आएगी, फिर वहां से सपोज नॉर्थ डायरेक्शन साउथ से आने वाली ट्रेन को अगर ईस्ट में जाना है तो वो एक पर्टिकुलर स्टेशन में आएगी, फिर वहां से टर्न लेगी, ठीक है ना। उसके बाद रेलवे स्टेशन आर हैविंग सूटेबल अप्रोच रोड्स फ्रॉम सराउंडिंग एरियाज, जो भी रेलवे स्टेशन है उनमें एक प्रॉपर सूटेबल अप्रोच रोड्स होना चाहिए सराउंडिंग एरियाज से, ठीक है ना। और रेलवे स्टेशन जनरली सिटी के बीच में ही प्रोवाइड करते हैं, मैक्सिमम आप देखोगे तो रेलवे स्टेशन जो है वो सिटी के सेंटर में जनरली होता है, ताकि जो लोग हैं हर एरिया के लिए वो सूटेबल रहे, वो ऐसा स्टेशन ऐसी जगह पे होना चाहिए कि इट विल बी सूटेबल फॉर सराउंडिंग एरियाज, ओके। So basically, this railway station usually provided at center of the cities mostly. As you can see in case of Nagpur also, the railway station is at the center of the city. So next topic is type of station. Okay, type of station. There are basically three types of stations. Okay, the first one is a wayside station. Second is junction station. Third is terminal station. Okay, I know you all are familiar with these two words, junction station and terminal station, but I don't think you have heard this term called wayside station before. So we will see what is this wayside station. You have seen this station in your life, but I don't think that you have heard this word before, wayside station. You know about junction and terminal. So let's see basically first that is what is this wayside station. So wayside station, in this type of arrangement or in this type of stations are made for crossing or for overtaking of trains. Wayside station are of the following three types: halt station, flag station and crossing station. So wayside station, सबसे पहले तो wayside station जो है वो एक ऐसा अरेंजमेंट है जो कि क्रॉसिंग और रेल ट्रेन्स की ओवरटेकिंग के लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ये कोई जंक्शन नहीं है, दिस इज नॉट अ जंक्शन, okay, this is neither a junction nor a terminal, it is usually a small station, okay. These are the very small station. You have seen, you might have traveled from for example Nagpur to Gondia. Between Nagpur to Gondia there are several stations, which is not a junction, which is not a terminal. So what is this, what is that station? They are all are wayside station. You might have traveled from Nagpur to Gondia, Nagpur to Mumbai, Nagpur to so many cities. Okay, so you might have seen there are very small stations
okay, which our train crosses. They are very small stations in which our train doesn't stop. It crosses a station with higher speed. Train doesn't stop all these wayside stations. Okay, in wayside station, the super fast train doesn't stop. Okay, so for example, you are traveling from Nagpur to Gondia. There are so many stations like Kamti, Bhandara, Tumsar. There are so many stations comes. These stations are wayside stations. So basically, these stations are made for crossing or for overtaking. Of course, it's a city also. For example, there is a Bhandara city is there, okay, and Tumsar. They are also a town or a city, but the station will be called as wayside station. They won't be called as a junction or terminal station. Okay, so these stations are usually provided for crossing or overtaking of trains, especially for super fast trains. Okay, ये जो वे साइड स्टेशन है, जैसे कि आप नागपुर से गोंदिया जा रहे हो, तो बीच में जो छोटे छोटे से स्टेशन पड़ते हैं, भंडारा, तुमसर, है ना, कनान, कामठी, ऑफ कोर्स ये टाउन है, सिटीज है, यहाँ पे भी लोग उतरते हैं, चढ़ते हैं, ठीक है ना। बट ये जो स्टेशन है, इन्हें हम वे साइड स्टेशन की कैटेगरी में डालेंगे। ये कोई जंक्शन नहीं है या ये टर्मिनल नहीं है, ये वे साइड स्टेशन की कैटेगरी में है। जैसे कि भंडारा रोड है ना, भंडारा रोड एक स्टेशन है, वो एक वे साइड स्टेशन की कैटेगरी में परफेक्ट आएगा। वहाँ पे ट्रेन जनरली एक दूसरे को क्रॉस करती है। ऑफ कोर्स वहाँ पैसेंजर चढ़ते भी है, उतरते भी है, बट ये जो छोटे छोटे स्टेशन आते हैं बड़े स्टेशनों के बीच में, है ना, ये जो बड़े बड़े स्टेशन के बीच में जो छोटे स्टेशन आते हैं, इन्हें बोला जाता है वे साइड स्टेशन। ठीक है, वे साइड स्टेशन के भी तीन टाइप है। दे आर हॉल्ट स्टेशन, दे आर फ्लैग स्टेशन, ऑल्सो अ क्रॉसिंग स्टेशन। सो फर्स्ट we will see what is this halt stations. As from the name you can understand, a halt means a stop. So a halt is a small station, usually unstaffed and with few or no facilities. In some cases, trains stop only on request when passenger on the platform indicate that they wish to board, or passengers on the train inform the crew that they wish to alight. इसका मीनिंग क्या है, देखिए बेसिकली ये हॉल स्टेशन एक बहुत छोटा सा स्मॉल स्टेशन है जो कि अनस्टाफ्ड है। वहाँ पे कोई आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगी, ठीक है ना, वहाँ पे अनस्टाफ होता है और बिल्कुल नो के बराबर वहाँ पे फैसिलिटीज है। अनस्टाफ मतलब वहाँ पे कोई, आप बोल सकते हो, कोई भी स्टेशन मास्टर नहीं है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें वहाँ पे नहीं होती है। ठीक है, फैसिलिटीज नहीं होती है, स्टाफ बहुत कम होता है या होता ही नहीं है। और वहाँ पे ट्रेन जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्पेशल रिक्वेस्ट पे रुकती है। ठीक है, स्पेशल किसी ने बोला कि उन्हें उतरना है या चढ़ना है वहाँ से, तो स्पेशल रिक्वेस्ट पे वहाँ पे ट्रेन रुकती है। ठीक है, तो ये होता है हॉल्ट स्टेशन। ठीक है, छोटे से स्टेशन है। ये देखिए, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये एक रेलवे लाइन है और ये देखिए प्लेटफॉर्म ही है यहाँ पर। हॉल्ट स्टेशन के एग्जांपल्स आप देखते होंगे कई दफ़ा, बहुत ही छोटे छोटे स्टेशन होते हैं। ठीक है, जो बहुत छोटे से टाउन से भी छोटी जो जगह है, ठीक है ना, वो स्टेशन होते हैं। इसमें देखिए एक प्लेटफॉर्म दिख रहा है आपको 250 मीटर लॉन्ग, इस सिर्फ नेम होगा उस स्टेशन का, और बस रेलवे लाइन क्रॉस करेगी। इसके अलावा यहाँ पे आप देखोगे कोई रेलवे बिल्डिंग नहीं है, टॉयलेट, बाथरूम, कोई सुविधा है, कोई फैसिलिटीज यहाँ पे प्रोवाइड नहीं की गई। तो ऐसे स्टेशन को बोला जाता है हॉल्ट स्टेशन। ओके, हॉल्ट स्टेशन। इसके बाद नेक्स्ट है फ्लैग स्टेशन। फ्लैग स्टेशन ऑलमोस्ट सिमिलर है हॉल्ट स्टेशन से, सिर्फ इसमें एक छोटी सी चीज चेंज है कि यहाँ पे थोड़ी सी एक्स्ट्रा फैसिलिटीज है। ठीक है, अब फ्लैग स्टेशन में क्या होता है, फ्लैग स्टेशन डिस्क्राइब्स एज अ स्टॉपिंग पॉइंट एट विच ट्रेन स्टॉप्स ओनली ऑन एज नीड और रिक्वेस्ट बेसिस। यहाँ पे भी देखिए रिक्वेस्ट या स्पेशल परमिशन है वहाँ पे ट्रेन रोकने की किसी पैसेंजर को, तो वो वहाँ पे उतर सकते हैं, वहाँ से चढ़ सकते हैं। ठीक है, these stations have no overtaking or crossing facilities, and also halt station doesn't have that overtaking and crossing facilities. Okay, ये स्टेशन में भी ओवरटेकिंग या क्रॉसिंग की फैसिलिटीज नहीं होती है, ट्रेन बस एक डायरेक्शन में मूव होती है। एंड अरेंजमेंट टू कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ ट्रेन, दी स्टेशन हैव बिल्डिंग, स्टाफ एंड टेलीग्राफ फैसिलिटीज। इस स्टेशन में देखिए बिल्डिंग भी होती है और स्टाफ भी होते हैं। ठीक है, ये छोटा सा जो चेंज है हॉल स्टेशन से फ्लैग में, यहाँ पे
बिल्डिंग और स्टाफ होते हैं, ठीक है। सम ऑफ द फ्लैग स्टेशन हैव साइडिंग ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ लूप। साइडिंग का मतलब एक साइड में ट्रैक होता है, ठीक है, जो कि एक ट्रेन रुक जाती है और दूसरी ट्रेन वहां से पास हो जाती है, ठीक है। तो ये साइडिंग होता है, वहाँ पे लूप के फॉर्म में होता है साइडिंग। इसको मैं दिखाता हूँ आपको। अ, अब इसमें देखिए डायग्राम में ये एक रेलवे लाइन है। अब पिछले वाले में आपने देखे थे कि एक प्लेटफॉर्म है और नेम है उस प्लेटफॉर्म का या उस स्टेशन का। उसके साथ साथ यहाँ पे देखिए टॉयलेट बाथरूम की फैसिलिटीज भी होती है और एक स्टेशन बिल्डिंग भी होती है। तो फ्लैग स्टेशन में सिर्फ देर इज ओनली two improvement as compared to the hall station. There will be a facilities for toilet and also a station building will be there. So there is a very small change with flag station from hall station. In hall station there is only a platform, no, neither a station nor a toilets facilities. Okay, so this is called as a flag station. Let's move further. The next one will be crossing station. As the name suggests, you can understand from the name, these stations are usually provided to cross one train with another train, okay, for especially for the overtaking operations. See here, these stations are provided with facilities for crossing. In this type, at least one loop line is provided to allow another train if one track is already occupied by a waiting train. अगर वहाँ पे एक ट्रेन वहाँ पे ऑलरेडी वहाँ पे खड़ी है ट्रेन स्टेशन पे, तो वहाँ पे एक लूप होगा। लूप मतलब साइडिंग होगी, जिससे ट्रेन, अभी आपको डायग्राम में क्लियर हो जाएगा, साइडिंग होगी जिससे ट्रेन वो एक दूसरी ट्रेन को क्रॉस कर जाएगी, ठीक है। ये स्पेशली क्रॉसिंग के लिए ही यूज किया जाता है ये स्टेशन, ठीक है। और ऑफ कोर्स वहाँ पे लोग जो है वो उतरते हैं, चढ़ते भी है पैसेंजर, ठीक है। क्रॉसिंग स्टेशन, क्रॉसिंग स्टेशन का एग्जांपल आप भंडारा रोड बोल सकते हो, वो एक क्रॉसिंग स्टेशन का एग्जांपल है। और जनरली जो स्टेशन आते हैं वो सारे क्रॉसिंग स्टेशन ही होते हैं ऑलमोस्ट, ठीक है। मतलब वे साइड स्टेशन में मेन कैटेगरी में क्रॉसिंग स्टेशन आते हैं, ठीक है। जनरली द ट्रेन टू बी स्टॉप्ड इज टेकन ऑन द लूप लाइन एंड थ्रू ट्रेन इज अलाउड टू पास ऑन द मेन लाइन। इसका मैं आपको डायग्राम के जरिए बताता हूँ। This is an example of a crossing station. As you can see, there are almost all the facilities of flag station, but there is only a small change. There are loop is here. For example, यहाँ पे देखिए प्लेटफॉर्म है, रेलवे बिल्डिंग है, बाकी नेम प्लेट्स है, टॉयलेट बाथरूम की सारी सुविधा है, सब कुछ होता है, डायग्राम में नहीं है। और ये जो है एक फुट ओवर ब्रिज है, एक प्लेटफॉर्म से दूसरे प्लेटफॉर्म पे जाने के लिए आप देखते होंगे एक ओवर ब्रिज होता है, फुट ओवर ब्रिज, जिसके ऊपर से हम मेन लाइन ये ट्रैक के बीच में से ना जाते हुए हम इसके ऊपर जाके फुट ओवर ब्रिज के जरिए हम वी कैन इजीली मूव फ्रॉम वन प्लेटफॉर्म टू अनदर प्लेटफॉर्म, ओके। तो यहाँ पे देखिए जैसे कि ये मेन लाइन है, ठीक है, ये मेन लाइन है। अब फॉर एग्जांपल एक ट्रेन यहाँ से आती है, एक सेकेंड, फॉर एग्जांपल एक ट्रेन ये यहाँ से आती है और वो यहाँ पर खड़ी हो जाती है ट्रेन, ठीक है। यहाँ पे वो ट्रेन खड़ी हो गई, ये प्लेटफॉर्म के बाजू में। अब एक सुपर फास्ट ट्रेन आएगी, तो उसे क्रॉस करने के लिए वो सीधी मेन लाइन से होते हुए ये स्टेशन को क्रॉस कर जाएगी और जो लोकल ट्रेन है वो यहाँ पे आके रुक जाएगी, ठीक है। तो ये सुपर फास्ट ट्रेन, पहले लोकल ट्रेन आ रही थी फॉर एग्जांपल, उसके पीछे सुपर फास्ट ट्रेन थी, तो एक ही ट्रैक था यहाँ पे। तो जब लोकल ट्रेन जो आई वो उसको यहाँ पे रुकना भी था, तो वो क्या हो गई, यहाँ पे आके स्टैंड हो गई यहाँ पे। और जो सुपर फास्ट ट्रेन है, ठीक है, जो सुपर फास्ट ट्रेन थी वो यहाँ पे आकर इस तरीके से इसको पास कर गई, ठीक है। ये सुपर फास्ट ट्रेन रेड लाइन में और ये लोकल ट्रेन जो यहाँ पे रुक गई थी, ठीक है। उसके अलावा एक और ट्रेन यहाँ पे आके रुक सकती है, उसे भी हम क्रॉस कर सकते हैं सिमिलरली, ठीक है। ये जो सैंड हम पे ये स्टॉपिंग के लिए यूज किया जाता है, इसको भी हम देखेंगे आगे। तो ये देखिए इसका डेड एंड है साइडिंग का, ये होती है साइडिंग, ठीक है। ये देखिए ये जो है ना, ये होती है साइडिंग, साइड में, साइडिंग मतलब साइड साइड में जो ट्रैक है, मेन ट्रैक से जो साइडिंग है उसकी ये मेन ट्रैक की साइडिंग दो है, इधर साइड भी है इधर साइड भी। देयर आर टू साइड्स ऑफ main track, there are two sidings, one is here, one is here. So train, for example, the two trains are coming in front. First is a local train and behind local train there is a super fast train, and super fast train needs to cross this local train. So what will happen, the local train will come here, it will take left hand siding and will stop at this platform, okay. And in the main line
The super fast train which was running behind the local train will easily cross this station without interrupting this local train. Easily it will cross this station uh, with the help of this main line. Okay, so this is called as a crossing station, which is usually provided to cross or to overtake a slow train by a fast moving train. Okay, so I hope you have understood this topic, these stations, flag station, halt station. Okay, so let's move further. So we have completed this wayside station, the three main types of wayside station, which is the halt station, flag station, and crossing station. Next one is a junction station. See, as the name suggests, a junction station, Nagpur Junction. Okay, as you all know, our Nagpur is a junction. A junction means where trains from different directions, more than three directions. Okay, more than three directions are meet. Okay, lines, for example, here at a junction station, lines from three or more direction meets. See, see this diagram. For example, this yellow box is a Nagpur junction. Okay, this yellow box is a Nagpur junction, and just imagine the Nagpur junction. As you all know, if you have traveled this all four direction, जैसे कि ये येलो बॉक्स आप समझिए कि नागपुर जंक्शन है, और अगर आपने चारों डायरेक्शन में ट्रैवल की हो नागपुर जंक्शन से, तो सबसे पहले आपको पता है कि देखिए यहाँ पे इस डायरेक्शन में जो जा रही है ट्रेन मुंबई की तरफ जाती है, इस डायरेक्शन में जब ट्रेन जाएगी, ठीक है, तो ये साउथ साइड में जाएगी, मुंबई में वेस्ट साइड में जाएगी, नीचे साउथ साइड में हैदराबाद बैंगलोर की तरफ जाएगी, उसके बाद इस डायरेक्शन में दिल्ली की तरफ जाएगी, इस डायरेक्शन में कोलकाता रूट है। तो नागपुर जंक्शन में आप देखते होंगे कि ट्रेन जो है, फॉर एग्जांपल अगर वो कोलकाता से आ रही है तो वो क्या सीधा यहाँ पे चले जाएगी। कोलकाता से ट्रेन आ रही है फॉर एग्जांपल, जैसे कि आप एक ट्रेन है जिसका नाम गोंडवाना एक्सप्रेस है, जो कि रायगढ़, जो कि छत्तीसगढ़ का एक छोटा सा टाउन है रायगढ़, रायगढ़ से निजामुद्दीन यानी कि दिल्ली तक जाती है। तो जो गोंडवाना एक्सप्रेस है वो देखिए फॉर एग्जांपल ये बिलासपुर कोलकाता रूट से आती है, तो क्या वो सीधा दिल्ली रूट पे चले जाएगी क्या? नागपुर स्टेशन उसको जाना पड़ेगा। ठीक है, वो ट्रेन आएगी नागपुर जंक्शन में रुकेगी, यहाँ पे फैसिलिटीज जो है ट्रेन में जो बोल सकते हो आप, फूड प्रोवाइड करना, पानी भरना, है ना, ये सारी चीजें वहाँ पे होगी, थोड़ी सी ट्रेन की सफाई होगी नागपुर जंक्शन पे। फिर जाके वो क्या होगा, नागपुर जंक्शन से होने के बाद इंजन जो है वो घूम के इधर बैक साइड में लगेगा, और फिर ट्रेन क्या होगी, वो दिल्ली की तरफ मूव करेगी। ठीक है, ये दिल्ली का डायरेक्शन हो गया नॉर्थ साइड में। तो जो ट्रेन है जो किसी भी डायरेक्शन से आ रही है, तीन डायरेक्शन से ज्यादा अगर है, ठीक है, अगर वो तीन या फिर तीन से ज्यादा डायरेक्शन से आ रही है उस पर्टिकुलर स्टेशन पे, तो उस स्टेशन को बोला जाता है जंक्शन। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि साउथ से तेलंगाना एक्सप्रेस आती है, तेलंगाना एक्सप्रेस यहाँ से आएगी तो वो नॉर्थ साइड में जाएगी। ठीक है, तो तेलंगाना एक्सप्रेस जो आ रही है यहाँ से, वो नागपुर स्टेशन पे उसे रुकना पड़ेगा नागपुर जंक्शन पे। फिर वहाँ पे जो फैसिलिटीज है ट्रेन में, जो भी चीज़ें पैसेंजर्स को ऑनबोर्ड होना है, या फिर फैसिलिटीज जो प्रोवाइड करते हैं ट्रेन में क्लीनिंग है या फिर दूसरे ऑपरेशंस है, उन सब के बाद फिर ट्रेन आराम से दिल्ली की तरफ मूव करेगी। तो एक जंक्शन का काम क्या है, वो तीन से ज्यादा डायरेक्शन से अगर ट्रेन वहां पे आ रही है और अलग अलग डायरेक्शन से आके अलग अलग डायरेक्शन में निकल रही है, नॉर्थ से आके साउथ में जा रही है, ईस्ट से आके साउथ में जा रही है, ईस्ट से आके नॉर्थ साइड में जा रही है, ठीक है, वेस्ट से आके साउथ में जा रही है, वेस्ट से आके नॉर्थ में जा रही है, तो ये ट्रेन अलग अलग डायरेक्शन से आके अलग अलग डायरेक्शन में डिवाइड हो जाती है। तो वो कहाँ पे होता है, जंक्शन में होता है। ठीक है, वो चीजें होती है जंक्शन में। तो ये एग्जांपल आपने देखे एक नागपुर जंक्शन का, ठीक है ना, तो इसमें ट्रेन ऐसे ही होता है यहाँ पे। ठीक है, और कई दफा ट्रेन जो है वो कोलकाता रूट से आके, जैसे कि हाँ ये आपकी नाम भूल रहा हूँ मैं, ये गीतांजलि एक्सप्रेस है, वो कहाँ से आती है, हावड़ा से लेके मुंबई जाती है। ठीक है ना, तो वहाँ पे हावड़ा सीएसटी जाती है, तो वहाँ से सीधा आएगी कोलकाता रूट से और सीधा मुंबई की तरफ निकल जाएगी यहाँ पे रुकते हुए। ठीक है, डायरेक्शन उसका स्ट्रेट ही रहा। ठीक है, लेकिन कई ट्रेनें हैं जो कि हावड़ा से लेके
आप बोल सकते हो साउथ साइड में जाती है, हैदराबाद जाती है, सिकंदराबाद जाती है। तो डायरेक्शन जो चेंज हो रहा है वो स्टेशन के पास हो रहा है, ठीक है ना। उसे जंक्शन में आना पड़ेगा और जंक्शन से ही अलग अलग डायरेक्शन में ट्रेन मूव होती है, ठीक है। आई होप आपको ये समझा है जंक्शन, ठीक है। बहुत सिंपल है, आपको पता ही है जंक्शन क्या है, मैं जस्ट उसको आपको रिमाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। आफ्टर दैट यहाँ पे देखिए, द स्टेशन वेयर अ ब्रांच लाइन मीट्स द मेन लाइन आर नोन एज जंक्शन। एक और इसका एग्जांपल है, एक और इसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि जो ब्रांच लाइंस है वो एक मेन लाइन में आके मिलती है। बहुत सारी ब्रांच लाइन एक मेन लाइन में आके मिलती है, उसे भी हम जंक्शन बोल सकते हैं। लेकिन जो पहली डेफिनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट है कि अलग अलग 3 डायरेक्शन से ज़्यादा अगर उस स्टेशन में लाइंस आ रही है तो वो एक जंक्शन है। उसी तरीके से इटारसी एक बड़ा जंक्शन है, भुसावल एक बड़ा जंक्शन है, ठीक है। बहुत सारे इंडिया में इस तरीके से बड़े बड़े जंक्शन है। इटारसी भी फेमस है, नागपुर जंक्शन बहुत फेमस है जहाँ पे बहुत सारी ट्रेन आती है, अलग अलग डायरेक्शन से आती है। और नागपुर क्योंकि इट इज़ इन द सेंटर ऑफ द कंट्री, तो ये क्या है, नागपुर स्टेशन से बहुत सारी ट्रेनें क्रॉस होती है। उसके बाद देखिए, अरेंजमेंट्स इन जंक्शन स्टेशंस। As you all know, junction stations are considered to be the most important stations of country. यहाँ पे फैसिलिटीज भी बहुत ज़्यादा होती है, ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज होती है यहाँ पे, ठीक है। फैसिलिटीज फॉर इंटरचेंज ऑफ ट्रैफिक बिटवीन मेन लाइन एंड ब्रांच लाइन। ट्रेन जो है वो मेन लाइन से ब्रांच लाइन में जाती है, ट्रैफिक मूवमेंट परफेक्ट होता है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद क्लीनिंग होता है, रिपेयर होता है कंपार्टमेंट का ट्रेन का, जो मैंने आपको बताया। ये सारी फैसिलिटीज यहाँ पे होना चाहिए। फैसिलिटीज फॉर गुड साइडिंग्स, इंजन शेड, टर्न टेबल। टर्न टेबल जो है इसे हम आखिरी में पढ़ेंगे, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप हमेशा देखते होंगे कि एक ट्रेन आके स्टेशन पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि एक ट्रेन आ रही है यहाँ से, एक ट्रेन कोलकाता साइड से आई, नागपुर स्टेशन पे रुक गई, अब उसे दिल्ली की तरफ जाना है, रिटर्न जाना है। तो जो इंजन है, इंजन जो रिवर्स आता है वो आता है टर्न टेबल की मदद से। तो टर्न टेबल का टॉपिक हम लास्ट में डिटेल में देखेंगे, ठीक है। जब ये स्टेशन का खत्म होगा तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा टर्न टेबल रहेगा, तो इसको हम अच्छे से देखेंगे डिटेल में टर्न टेबल को, ठीक है। तो ये सारी टर्न टेबल की फैसिलिटी, इंजन शेड होना, ये सारी फैसिलिटीज एक अच्छे जंक्शन में होती है, ठीक है। ये जंक्शन का एक लेआउट है, ठीक है ना। इसमें बहुत सारे देखिए प्लेटफॉर्म्स है, एक जस्ट एक एग्जांपल है, ठीक है। टर्न टेबल जिसमें ट्रेन जो इंजन इंजन है वो एक 180 डिग्री का टर्न लेता है। यहाँ पे एक सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, यहाँ पे ट्रैक पूरा 180 डिग्री घूम जाता है और अपना डायरेक्शन इंजन चेंज कर लेता है। इसको हम देखेंगे और डिटेल में आगे। देखिए एक एग्जांपल है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स होते हैं इसमें, लूप लाइंस होती है, ठीक है ना। एक स्टेशन आप नागपुर जंक्शन को इमेजिन कर सकते हो, सबसे परफेक्ट अगर कोई है नागपुर स्टेशन का, नागपुर जंक्शन है, ठीक है। उसमें ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज होती है, ड्राइंग में उतने क्लियरली नहीं दिया है बट ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज है उसमें, ठीक है। नेक्स्ट इज अ टर्मिनल स्टेशन। अब टर्मिनल का मीनिंग क्या है, जहाँ पे टर्मिनेट होता है ट्रैक, ठीक है ना, वेयर ट्रैक टर्मिनेट्स। इट इज अ स्टेशन वेयर रेलवे लाइन और वन ऑफ इट्स ब्रांचेस टर्मिनेट्स, ठीक है ना। यहाँ पे रेलवे लाइन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, खत्म हो जाती है, उसके आगे कुछ होता ही नहीं है। सबसे बेस्ट एग्जांपल है सीएसटी स्टेशन मुंबई का, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, नाम से ही छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, ठीक है। जहाँ पे ट्रेन जो है वो टर्मिनेट हो जाती है, तो वहाँ पे आगे कुछ जा ही नहीं सकती है ट्रेन। ये भी स्टेशंस बड़े स्टेशंस होते हैं, ठीक है। और यहाँ पे भी ऑलमोस्ट सारी फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है। फैसिलिटीज रिक्वायर्ड इन अ टर्मिनल स्टेशन। एक अच्छे टर्मिनल स्टेशन में क्या होती है, वाटरिंग, कूलिंग, क्लीनिंग, सर्विसिंग ऑफ द इंजन, टर्न टेबल होता है वहाँ पे भी। वहाँ पे तो टर्न टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ट्रेन को अपना डायरेक्शन चेंज करना ही है, रिवर्स जाना है वापस। तो जो आपका इंजन है वो 180 डिग्री का टर्न लेगा टर्न टेबल पे, ठीक है। 180 डिग्री का टर्न लेगा टर्न टेबल पे। अब इतना हम टर्न टेबल को डिस्कस कर ही रहे, तो आपको मैं एग्जांपल बता ही देता हूँ, एक इमेज उसकी देखिए। ये लोकोमोटिव यहाँ पे आके खड़ा होगा और ये जो ट्रैक है, ये जो इतना ट्रैक है ना, ये पूरा 180 डिग्री टर्न हो जाएगा और लोकोमोटिव का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से इंजन जब एक ट्रेन में आता है, उसको रिवर्स जाना है तो वो घूम के इस तरीके से टर्न टेबल की मदद से रिवर्स आता है, ठीक है। ये टर्न देखिए, जैसे कि ये लोकोमोटिव यहाँ पे आके खड़ा होगा, फिर ये ट्रैक इस तरीके से घूमेगा ये टर्न टेबल, और फॉर एग्जांपल यहाँ पे आके रुक जाएगा, तो लोकोमोटिव का डायरेक्शन फिर से रिवर्स हो जाएगा, इसमें इसमें या फिर ये जहाँ से आया था वहीं पर ही, ठीक है। तो ये होता है एक टर्न टेबल।
ठीक है, जस्ट आपको एक बताने के लिए इमेज मैंने दिखा दिया। तो वो नेक्स्ट देखिए कंटिन्यू करते हैं। टर्न टेबल फॉर द चेंज ऑफ डायरेक्शन ऑफ इंजन, फैसिलिटीज फॉर डीलिंग गुड्स ट्रैफिक सच एज मार्शलिंग यार्ड, इंजन शेड, साइडिंग। मार्शलिंग यार्ड को हम डिटेल में देखेंगे। इंजन के शेड्स होते हैं, साइडिंग होती है, इंजन क्लीनिंग, इंजन में अगर कुछ प्रॉब्लम है तो वो यार्ड्स में जाके उसकी रिपेयरिंग की जाती है। इन सर्कुलेटिंग एरिया टिकट ऑफिस, रेस्टोरेंट होते हैं, ठीक है ना, बहुत सारी फैसिलिटीज। आप में से अगर कोई सीएसटी स्टेशन गया होगा तो वहाँ पे देखा होगा कि वन ऑफ द बिगेस्ट स्टेशन एंड वन ऑफ द मोस्ट कंजेस्टेड स्टेशन ऑल्सो, जहाँ पे कंजेशन जो है, कंजेस्टेड सबसे ज़्यादा पैसेंजर कंजेशन अगर कहीं पर है तो वो सीएसटी स्टेशन में है। ठीक है, वहाँ पे जो पैसेंजर का जो ट्रैफिक है, पैसेंजर ट्रैफिक का जो वॉल्यूम जो है उसका बहुत ही ज़्यादा है, बहुत लोग ट्रैवल करते हैं सीएसटी स्टेशन से। तो वहाँ पे बहुत सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल है सीएसटी स्टेशन। सीएसटी स्टेशन इज अ परफेक्ट एग्जांपल ऑफ अ टर्मिनल स्टेशन इन इंडिया। तो ये देखिए एक लेआउट है, देखिए यहाँ पे ये टर्मिनेट हो जा रहा है, ट्रैक नंबर 1 2 3 4 सारे जाके यहाँ पे टर्मिनेट हो जा रहे हैं, आगे कोई कंटिन्यूशन है ही नहीं। ठीक है, और जो इंजन है वो आगे जाके यहाँ पे टर्न टेबल होता है आगे, और वो टर्न होके वापस आ जाता है, ठीक है, ट्रैक पे। तो यहाँ पर जो है ट्रेन जो है, यहाँ पे आगे कोई जा ही नहीं सकती, एक डायरेक्शन है। ठीक है, ट्रेन जो है वो इस डायरेक्शन से आ सकती है, लेकिन आगे यहाँ से आगे नहीं जा सकती वो। ठीक है, उसकी एंट्री यहाँ पर नहीं है। ठीक है, उसकी एंट्री ये यहाँ पर नहीं है। ठीक है, इससे आगे वो ट्रेन नहीं जा सकती, उसका एंड यहाँ पे हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ये जो लाइन है टर्मिनेशन लाइन है। ठीक है, तो आप सीएसटी स्टेशन कभी गए तो वहाँ पे ऑब्जर्व करना, इस तरीके से टर्मिनेशन लिखा है वहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे ट्रैक टर्मिनेट हो जाता है, फिर ट्रेन क्या होगी, यहाँ पे जो ट्रेन आएगी फिर रिवर्स यहीं से वापस चले जाएगी, यहाँ पे जो ट्रेन आएगी फिर रिवर्स यहीं से वापस चले जाएगी। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज अ टर्मिनल स्टेशन। और टर्मिनल स्टेशन में देयर इज ऑलमोस्ट ऑल द फैसिलिटीज शुड बी देयर। ओके, रेस्टोरेंट्स, everything, every facility should be there, restaurants and the cleaning services, everything, repairing services. Okay, so this is a terminal station. There is also one more classification of station with block station, non-block station and special class station. We will see in next topic what is this block station, non-block station and special class station. In next lecture we will see this. Okay, in next lecture we will see this classification of station, which is classified into different class A, class B and class C. Okay, so I hope you have understood all the terms we have seen today. Just for the your reminder, see definition of station. As you all know, stations are usually provided to stop to load or unload passenger, and we saw this is a layout of a station. The purpose of station, we have seen all these purposes of station, and we have discussed that there are three main type of station: wayside, junction and terminal. In wayside station there is also three types: halt station, flag station and crossing station. And in junction station is a station where from three direction the tracks meet more than three direction. And a terminal station is the station where track usually terminates. Okay, so हमने ये बाकी सारी चीज़ें देख ली है। नेक्स्ट टॉपिक में हम एक अलग क्लासिफिकेशन देखेंगे स्टेशन की, और नेक्स्ट टॉपिक में हम यार्ड्स के बारे में देखेंगे। यार्ड्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, यार्ड्स भी, स्पेशली मार्शलिंग यार्ड जो है बहुत नया है और बहुत अच्छा टॉपिक है, वो भी हम उसमें डिटेल में देखेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया है। वे साइड स्टेशन में भी तीन टाइप थे हमने देखे: हॉल्ट, फ्लैग और क्रॉसिंग। वे साइड स्टेशन शॉर्ट स्टेशन है जो कि बड़े स्टेशन के बीच में है। हॉल्ट स्टेशन एक छोटा सा स्टेशन है जिसमें ज़्यादा फैसिलिटीज़ है नहीं, और उसके अलावा फ्लैग स्टेशन में सिर्फ एक दो फैसिलिटीज़, मेन बिल्डिंग आ जाती है स्टेशन की, देखे हमने।
उसके बाद क्रॉसिंग स्टेशन, एक ट्रेन दूसरी ट्रेन को क्रॉस करती है तो प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद जो बाकी चीज़ें जंक्शन वगैरह ये हमने देख लिए। ठीक है, अगर इसमें आपको कुछ डाउट है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।